ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक साउंड तो हमारा खत्म हो गया था। यस सर। यस सर। तो आज जो है सब बुकलेट पूरा कर सकते हैं तीनों का। हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वेव स्टोरी। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स क्या है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स वेयर we think of light as a wave. We will later find that तो हमने पहले लाइट का डिस्कशन जो किया है, द अदर thing you have studied about light is ray optics, right, or geometrical optics, which is really not a theory of light. It is simply you could say it's a method of constructing ray diagrams, right? So that is not really what light actually is. It's more like what kind of drawing, so that we get the correct answers in the sense of कि इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, वो सब जो है वो सब करेक्टली प्रेडिक्ट करता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
to some extent within approximations, but it's not really a theory of light. What I mean by theory of light is that it does not explain what light is, or what light does, or how it is produced, or what it actually. The only thing we are concerned with in ray optics, in ray optics, light is not treated as a wave, nor is it treated as a particle. It's not, like I said, light can be treated as a wave, can be treated also as a collection of particles, but ray optics is neither of them. It's not really an explanation of what light is. It is really a kind of a mathematical or a geometrical or a drawing technique which can predict where images are formed and how large the images are, right? It does not give you an explanation for what is happening. The laws are simply told to you as is. So the main laws of ray optics are law of reflection, which is I equals to R, and law of refraction, which is Snell's law. And neither of them is proved or explained in ray optics. If you think about it, they are simply stated as fact कि अगर लाइट आएगा और एक फ्लैट सरफेस होगा जो रिफ्लेक्टिंग होगा तो लाइट उसी एंगल पे जाएगा जिस एंगल पे आया था. इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन या कोई रीजनिंग नहीं बताई जाती है. वी सिंपली टेक इट फॉर ग्रांटेड. सिमिलरली अगर एक इंटरफेस है और दोनों तरफ ऑप्टिकल मीडिया है, तो लाइट अगर एक सर्टेन एंगल पर आया है तो एक सर्टेन डिफरेंट एंगल पर जाएगा जिसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको बताया जाता है, विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. बट व्हाई इज इट दैट इट इज गोइंग एट दैट एंगल is also not really under discussion in ray optics, right? We simply take it as a fact and then solve problems using that. Correct? So now we are going to go a step back, since we have already studied waves with two examples, wave on a string and sound. So we are in some position to understand waves as a whole. Now we can actually start thinking about light also as a wave, right? So light is both a wave and a particle. Actually everything is both a wave and a particle in a sense. But light was just the first and the most famous example of this duality. तो यहाँ पे हम लाइट को वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे. प्राइमरीली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे द फिनोमिनन, वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, राइट? And what kind of a thing it produces, and we'll be basically analyzing that superposition. So this chapter is really about superposing two different waves of light. ठीक है? अब before I begin, before we go on to that thing, the experiment, the main experiment, I will explain quickly a few things. तो अगर लाइट को वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हम लाइट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो हुआ क्या, हिस्टोरिकली हुआ ये था कि न्यूटन के टाइम पे देयर वाज न्यूटन एंड अदर पीपल, एंड देयर वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ राइवल ग्रुप of people who were basically led by another scientist called Christian Huygens. Okay, this was a Dutch physicist, and he was a contemporary of Newton. And so there basically the light है actually क्या कि वो wave की तरह propagate करता है कि particle की तरह propagate करता है. इस पे एक debate चल रहा था, long standing debate चल रहा था. And the people who basically thought that light was propagating like particles were led by Newton. Newton was in that camp. And people who thought otherwise, people who thought that light was actually propagated like a wave, were led by Huygens, right? So it's a Newton versus Huygens kind of a situation. पहले तो ये कि क्यों लगा होगा किसी को कि लाइट पार्टिकल की तरह प्रोपगेट करेगा, बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट पीपल नॉर्मली वुड ऑब्जर्व, राइट? न्यूटन वाज फेमसली ऑब्जर्वेशनल. He basically looked a lot at what was going on around him, and he basically gave theories based on what he was seeing. So light propagating as particle would be a natural thing to think, because for example, from observations like if I'm standing here and the sun is here, then people had already measured to very high accuracy the kind of shadows that it would form, and they had seen that it basically obeyed this kind of a relationship, right? That if you were standing like this, then your shadow would basically be this long. And that kind of made sense in the sense of that if light propagated like a stream of particles, then the particles that were blocked by your body would not reach here, but the particles that just missed your body would illuminate the rest of the region, and so your shadow would be basically in proportion to, you would have a similarity of triangles, right? So light propagating in straight lines would be kind of the thing, right? Or for example, people would have observed कि भाई एक कैंडल जल रहा है और मैं उसके सामने अपना हाथ रखता हूँ,
तो मैं जब भी हाथ यहाँ पे रखता हूँ कैंडल के बाजू में, तो पीछे वॉल पे मेरे हाथ का बहुत बड़ा शेडो बनता है. So that could also make sense because if the candle is emitting a bunch of light particles, then जितना पार्ट में वो ब्लॉक हो जाएगा उतना पार्ट में ब्लॉक हो जाएगा, तो उतना ह्यूज सा शैडो जो है एक फॉर्म हो जाएगा इस पूरे रीजन में. And if you get your hand closer to the wall, then the shadow would become smaller because it would be stopping a smaller proportion of the particles emitted by the candle, right? So these kind of things were the basis of why people like Newton thought that light was basically like a burst of light particles, which at that point of time in that kind of English he called corpuscles of light, which is basically just particles of light. And then to explain other phenomena that light shows, for example, something like reflection, Newton being Newton went with a very Newtonian approach where he said that reflection is nothing but an elastic collision of a corpuscle of light with a surface. So already क्योंकि momentum का theory और collisions का theory develop हो चुका था, जिसमें इसका भी काफी role है by the way. Both of these people were significant, instrumental in developing the theory of momentum. In fact, momentum originally was Huygens' idea. The concept of MV comes from Huygens. But Newton explained reflection in the sense of that since it's simply just particles, then it must be the case that particles are simply hitting the surface like any other particle, like a ball. And it's an elastic collision. And we know that in elastic collision, the angle is the same. So therefore, that is what reflection is. Of course, you can see कि refraction में जाके ये थोड़ा सा fail होने लगेगा logic. Because how do you explain that a particle of light will arrive at some angle and then go inside another material at a different angle? Why would it change its direction of motion and by a specific amount? To Also, maintain the what same we cannot frequency. explain is the fact that partially light is also reflected. Then now you have to get into like really complicated and contrived ideas ki nahi, the particle must be splitting into two particles and so on and so forth. So obviously the theory of light as particles colliding with surfaces was running into trouble, right? Ekansh, we don't know that it's elastic. Nobody knows. The problem with things like light is, and that's the problem with any kind of physics, the problem with any of these things which you can't observe happening, like the collision of a particle of light with a surface is not enough, then nobody can see it. इन सब चीजों के लिए थ्योरी होता है, राइट? जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो वो यूजुअली मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है, लेकिन उसके नीचे जो अंडरलाइंग माइक्रोस्कोपिक एक बेसिस होता है, वो थ्योरी होता है. थ्योरी इन द सेंस somebody says it must be like this. Nobody knows whether it is like this. Somebody comes up and says, claims that it probably is like this, right? And then what happens is that you then see, okay, if it is indeed like that, then what else can it predict? What else should also be happening? And then you check via experiment whether that is also happening. And the more it is happening, the more it is correct, the more confidence you have in your original claim. That's how it works, right? That's how the whole business of physics or any kind of science works. You can't see stuff happening, so you claim that it must be happening in a certain way. And then once you say, okay, assuming that it is happening in a certain way, what else must also be the case? If it is indeed the case that this is happening, then it must also be true that this is happening. Can we test it? Can we run an experiment which can actually, and the more experiments you run and the more check marks you get, correct, the more confidence you have in your claim. The claim cannot be verified completely. No claim in physics can be completely verified. It can only be experimentally validated, and the more thoroughly it has been tested, the more confidence you have in it as being a correct description of reality, right? So in any case, ये situation हो रहा था. But these guys said नहीं, actually ऐसा नहीं है, particle theory नहीं है, wave की तरह propagate करता है वो. It's like ripples on the surface of a pond. So when you switch on the candle or you switch on a source of light, it does not shoot bursts of particles of light. It creates a ripple of light in a medium. The medium being whatever it is. वो एक अलग issue है कि light का medium क्या है. That goes into another kind of discussion. But the difference in conceptualization is that the Newtonian group is saying the moment you switch on a source of light, it shoots particles of light like an explosion of bullets of light. The Huygens wala group is saying when you switch on the source of light, it's like it touches a medium which is everywhere, and that creates ripples in that medium, which is what light is. ठीक है? तो अब पहले सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि
Huygens के point of view से, how would Huygens explain why reflection occurs like this and why refraction occurs like this? And it turns out कि already he is ahead of Newton, because while Newton can kind of explain why reflection is occurring, he's saying it's an elastic collision, he doesn't really have a good explanation for this. In fact, Newton gave up on the whole idea of explaining light afterwards. वो दूसरी चीजों में लग गया, gravitation और calculus में. So he sort of gave up on trying to figure light out, right? But the point is that Huygens के टेक्निक से या Huygens के प्रिंसिपल से कि लाइट वेव है, ये दोनों चीजों का बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन है, to an extent that you could even call it a proof of the law of reflection and a proof of the law of refraction. So I'm going to first tell you what that is. Then we will see, and so this debate did not settle in their time, because to settle this conclusively required a particular kind of an experiment, जो उस टाइम पे करना पॉसिबल नहीं था due to some, you could say, technological limitations. वो एक्सपेरिमेंट जो है, जो कंक्लूसिवली जिसने एस्टैब्लिश किया कि एक्चुअली ये सही बोल रहा है कि लाइट एक्चुअली वेव है, वो हुआ इन दोनों के 100-150 साल बाद बाय अनदर गाय कॉल्ड थॉमस यंग, and that is called the Young's double slit experiment. It's a very famous experiment in physics, and the rest of the chapter is essentially about the Young's double slit experiment and how the Young's double slit experiment, which we call YDSE for short, establishes that light is actually propagated like a wave and not like a particle. Okay. By the way, that's not the end of the story. It turns out that another 100 or so years after Thomas Young comes along Albert Einstein, who then explains the photoelectric experiment, which is another iconic experiment in physics. And then we find that the photoelectric experiment can only be explained if you treat light as particles, right? So essentially पहले एक debate चल रही है जिसमें लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है वाला चीज हो रहा है, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रही है. सेटल इन द सेंस सोशली वो सेटल हो गया न्यूटन के फेवर में, बिकॉज मोस्ट पीपल सॉर्ट ऑफ वेंट विद न्यूटन बिकॉज दे जस्ट अज्यूम्ड ही वुड बी करेक्ट, एंड दीस पीपल वर सॉर्ट ऑफ पुश्ड टू द फ्रिंजेस. Then 100 years later, the Young experiment is done, which clearly settles the debate in favor of Huygens and all, that light is a wave. वो एक्सपेरिमेंट होने के कुछ साल बाद अराउंड 1880s में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल करके था, जिसका तुम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, जैसे गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, ऑल ऑफ दोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन. Maxwell solved those equations and produced the equation of a wave, and that gave even more support to the idea that light is a wave. क्योंकि एक चीज होता है बोलना light is a wave. The question then arises is what kind of a wave is it, right? Is it a wave of pressure? Is it a wave of displacement? What is the thing that is waving in it? आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. Guys, are you able to hear me? Yes sir. So उस हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, बिकॉज यहाँ से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक का स्टोरी इज रियली अबाउट फिगरिंग आउट वेदर लाइट इज अ वेव और अ पार्टिकल, एंड देन इवेंचुअली फिगरिंग आउट दैट एक्चुअली एवरीथिंग इज अ वेव एंड अ पार्टिकल बोथ. बट लेट मी फर्स्ट टेल यू that if we go with Huygens, how would the idea of light as wave be considered to produce the phenomena of reflection and refraction? Because these are phenomena that are experimentally verifiable. I mean, they were known from like even before Newton and Huygens came along, right? People could see that, okay, if I'm putting this here and the mirror is here, then the image is here or whatever. So these are known phenomena,
And if you now propose a theory of light, that light is actually propagating light away like a wave, then of course your theory or whatever you are claiming is the thing must explain what is already known to be true, right? अब मुझे ऑलरेडी पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है और एंगल सेम रहता है, तो आज मैं कोई नया थ्योरी प्रपोज करूं कि नहीं लाइट एक्चुअली न वेव है ना पार्टिकल है, इट्स लाइक अ व्हाटएवर, इट्स लाइक अ डांस ऑफ दिस थिंग, then to be able to to sort of be taken seriously as a new theory of light, it must at least at the bare minimum already explain what is known to be true. I can't offer a new theory. I mean, I can, nobody is stopping me, but it won't be taken seriously if it doesn't explain the things that are already known to be true. Then we can then check whether it also predicts something which is not known, something new, and then we can run an experiment and say, oh, this is a new prediction of this theory. But if a new theory comes along, it must at least be able to correctly show how things which are already known to be true are predicted by that theory, right? So that's what I'm telling you right now. पहले तो Huygens construction जो है उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है पहले तो मैं एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि consider that there is a point source of light, and for if you want to imagine some kind of a concrete thing, you can imagine कि this is the surface of a pond. इस चैप्टर में एक्चुअली वो हेल्पफुल एनालॉजी रहेगा हमेशा, वाटर वेव्स, रिपल्स ऑन अ पॉन्ड, बिकॉज 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज रियली जस्ट अ काइंड ऑफ अ टैप and it sends out one. If it's going to emit a pulse of light, then I tap it once. But if I want a source of light that is continuously emitting light, like a bulb or whatever, then that would mean that I am continuously tapping it, right? And so ripple after ripple are being produced and they are just propagating. Correct. Now the idea is that once the ripple has propagated to some distance, then the thing is called a wavefront, right? So wavefront कोई बहुत specific idea नहीं है, it's a very sort of broad term, it's not some technical term, it's a very broad term कि भाई वेव अगर जनरेट होगा तो जहां जहां तक वेव करंटली पहुंच चुका है, जिसके आगे मीडियम अभी अनडिस्टर्ब्ड है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है, द फ्रंट ऑफ द वेव. हॉयजेंस का जो प्रिंसिपल है जिसपे उसका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, वो ये है दैट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट itself becomes a secondary source. The secondary waves are called wavelets, small waves. ठीक है? So what does it mean? It means that you have to take every point on the wavefront and think of every point itself as being like a source, and then that also producing its own wave. And then what you do is, once you have formed enough of those wavelets, their envelope or their collected front becomes the new wavefront. So what I'm saying is कि मान लो ये तुम्हारा S है, ये इसका करंट वेव फ्रंट है. मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी प्रोपगेशन का है ना, ये थ्योरी है कि लाइट कैसे प्रोपगेट करता है, या जब वो एक सरफेस को मीट करता है तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि तुम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना चाहते हो. सो दिस थ्योरी, दिस टेक्निक, दिस प्रिंसिपल इज अबाउट हाउ टू प्रोपगेट द वेव फ्रंट. What is the mathematical principle behind how it moves and what happens to it when it interacts with something, and it's based on one singular principle that every point on the wavefront itself becomes like a, तो सब में से छोटे छोटे गोले निकलने लगेंगे. जैसे ये एक सोर्स है और इसमें से एक गोला निकला है, वैसे इस गोले पर हर पॉइंट एक सोर्स है और उसका अपना गोला निकलेगा. So what I have to do then is I have to make these secondary waves, right? And of course they are at every point, so I'm just making a few of them. But you can imagine that if I make all of them, then all these fronts will connect with each other and I will have a new wave front. The outer envelope of the wavelets becomes
the new wavefront. ठीक है, ये हो गया न्यू wavefront. अब इसके बाद क्या करना है, इसके साथ भी वही करना है जो इसके साथ किया. तो फिर इस तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल है, बताता है कि आगे क्या क्या होगा. अब यू कुड लुक एट दिस एग्जांपल एंड से ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी बोल सकता हूँ भाई पॉइंट सोर्स है, उसकी सिमेट्री के हिसाब से सर्कल ही बनना चाहिए, तो सर्कल ही बड़ा होता रहेगा, राइट. नाउ दैट्स ट्रू. Ripple in a pond theory is not a theory, that's an observation. In fact, you could look at it as an explanation for that also. Why a ripple circular is via Huygens principle. Right? The theory is an explanation for what is being seen. What is being seen is not a theory. If you watch ripples on the pond, then you could say, okay, why are they circular? Or if you generate ripples on a pond, then what happens to them when they meet something which is different from water? Let's say पानी में एक लकड़ी का पोस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पत्थर गिराया, यहाँ से रिपल्स निकले. जब तक पानी पानी है तब तक वो वैसे ही प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो पोस्ट पे पहुंचेंगे जो फिक्स्ड है यहाँ पर, तो इसमें से भी इसके रिपल्स निकलेंगे. सो देन आई नीड अ काइंड ऑफ अ mathematical statement which predicts that this will happen, and this is just that, right? Everything on the wavefront becomes itself a source. You have to understand that he is not saying, this guy is not saying that that is actually what is occurring. It's not a theory of the propagation of light. It's a technique, it's a construction technique to propagate light. Because you need some kind of a principle which is always repeatable and is always correct, right? What will you say then in what would you say कि ये जो है मिरर है और यहाँ पे तुमने रिपल्स जनरेट की, अब कैसे तुम रिफ्लेक्ट कराने वाले हो? What is your guiding principle? What are you going to do? What is the step that has to be repeated to generate the outcome of the situation? If you say I equals to R, then you're using some kind of a principle, right? This is an explanation of that. You don't have to say I equal to R. I equal to R will naturally arise from it. So in a sense, it is more fundamental than I equal to R. अगर मैं बोलूँ कि तुमने यहाँ पे रिपल्स गिराए, यहाँ पे तुमने सरफेस पे पॉन्ड के सरफेस पे पत्थर गिराया, उससे रिपल्स निकले. यहाँ पे मान लो वॉल है एक, तो क्वेश्चन इज कि जब ये रिपल्स वॉल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो नए रिपल्स कैसे दिखते होंगे? इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग लाइक कि लाइन बना दो, वन सेकंड, if you are going to say something like कि लाइन बना दो और फिर एंगल इक्वल टू एंगल कर दो, then you are using some kind of a principle which somebody else has told you, right? Then you have to say what is your justification for that? Why is the angle the same? That is the question that is being answered here. We are getting into the reason behind I equal to R, or why is it that the angle must be the same, right? पार्थ ग्रीन रिंग्स है सेकेंडरी. तो बेसिकली रेड वाला मेरा एक करंट वेवफ्रंट था कि अभी यहाँ पर है, फिर मैंने हॉजन्स का प्रिंसिपल लगाया कि जो भी करंट वेवफ्रंट है उस पर हर एक पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स बना दो. तो जिस तरीके से इस सोर्स के अपने गोले हैं तो वो सब सोर्सेज के अपने गोले हैं, तो मैंने ग्रीन में बना दिए. जब उनका सारों का फॉरवर्ड एनवेलप मैंने कनेक्ट कर दिया तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो नया वेवफ्रंट है. तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो बेसिकली ये थ्योरी प्रेडिक्ट ये कर रही है कि नया वेवफ्रंट सर्कल होगा, पुराना वेवफ्रंट अगर सर्कल है तो नया वेवफ्रंट भी सर्कल होगा और वो उससे थोड़ा बड़ा होगा. Now what I'm saying is you could always say इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी बोल सकता है. I understand that, but this is a trivial example. I'm just showing you what it does. In some non-trivial case, this will give you the correct answer. This is anybody can predict कि एक point source का wavefront हमेशा circle ही होगा और बड़ा होता रहेगा. The point is I'm showing the working of this principle on a case जिसका आंसर हम सबको पता होता है कि हाँ circle ही आना चाहिए. So we know that it is at least not predicting something ridiculous, right? Then we will see whether it also correctly predicts something like this. What happens to the wavefront if you have a reflecting surface? Correct, right? अभी सबको समझ में आ गया पूरा स्टोरी? ये थ्योरी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ थ्योरी. इसमें बहुत सारी गड़बड़ है. अगर ये ट्रू थ्योरी ऑफ लाइट होता तो पीपल कुड आस्क, एंड पीपल डिड एक्चुअली आस्क, हिस्टोरिकली पीपल डिड एक्चुअली आस्क कि ये क्या है, फिर ये पीछे जो गोला बन रहा है वो क्या है? आर यू सेइंग दैट एनर्जी, बिकॉज द वेव इज एनर्जी, आर यू सेइंग दैट एनर्जी विल आल्सो बी गोइंग बैक टू द सोर्स? ये गोले तो बड़े होंगे ना दोनों तरफ, ग्रीन वाले, तो अगर ये आगे की तरफ इनका नया वेवफ्रंट है तो पीछे भी कुछ जा रहा होगा. then as per this theory, if we take it seriously as a actual theory of light, then it should be that the source is continuously getting energy from the surrounding medium where there is nothing. That is obviously ridiculous, right? So this is not a theory. Huygens also said that this is not a theory.
It is only a technique. चिन्मय मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए. Obviously, it's based on the fact that if something has to propagate as a wave, and if all directions are identical, then the only logical thing for it to for the thing to do is to actually spread in all directions identically. That's all he's depending on. A lot of reasoning in physics is basically based on the symmetry of space. There's no mathematical basis for it. Nobody can prove that space is actually symmetric. We just assume that it is. Like if I said, तुम दूसरा एग्जांपल ले लो, समथिंग दैट यू हैव रिसेंटली स्टडीड. एक पॉइंट चार्ज है, मान लो आज इसका डिस्कवरी हुआ कि पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है. और फिर हमें ये भी पता चला भाई कि इसका स्पेस में एक इफेक्ट होता है जिसको हम फील्ड कहते हैं, और वो वेक्टर होता है, यानी उसकी डायरेक्शनैलिटी होती है कि अगर उधर कोई चार्ज रखेंगे तो उसको एक फोर्स लगेगा. इफ समबडी सेड ओके, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, व्हाट इज योर प्रपोज्ड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, व्हाट डू यू क्लेम, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी. Everybody is trying to come up with some explanation. This is the first time this phenomenon has been observed. Do you say something like this? Does it seem like a reasonable thing to say? It doesn't, right? No, sir. All of you understand, right? ये इतनी फंडामेंटल बात है कि इसको कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता. ये हम सबके अंदर इनबिल्ट होता है, दिस काइंड ऑफ बेसिक, कि अगर ये पॉइंट है और ये अकेला पॉइंट है और दुनिया में और कुछ नहीं है, तो सारे डायरेक्शन सिमेट्रिक हैं, तो किसी डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट है वो ऐसा एसिमेट्रिक क्यों होगा फिर? The only reasonable direction is either this way or this way. And also it should be the same at all such distances, कि अगर ये 5 का डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 5 का डिस्टेंस पे भी उतना ही बड़ा एरो आना चाहिए, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में 5 should be identical. Because again, if you stand at a point and all of space is around you and there are no planet, no star, no nothing, then what is different in this direction that is not there in this direction? They are all the same kind of direction. And so if some effect at a distance of 5 is like a long vector pointing at you, then at every such point at a distance of 5 from here, it should be the same kind of vector pointing at you, which gives it a spherical symmetry. Right? तो ये तो बेसिक फाउंडेशंस हैं फिजिक्स के कि स्पेस सिमेट्रिक है और होमोजेनस है और आइसोट्रोपिक है. इसको नहीं प्रूव किया जा सकता. जैसे 2 + 2 को 4 नहीं प्रूव किया जा सकता है, वो एक्सियोमेटिक बात है. वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट एंड देन वी बिल्ड थ्योरी ऑन टॉप ऑफ दैट. सिमिलरली फिजिक्स का फाउंडेशनल एक्सियम्स है कि स्पेस जो है होमोजेनस आइसोट्रोपिक है और उसको प्रूव नहीं कर सकते. तो अब in any case, let me just show you what happens when it reflects, right? So I hope all of you understand this much. अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बहुत ही एलिगेंट तरीके से जो है ये प्रिंसिपल शो करता है कि I = R आ जाना चाहिए. देखो, मान लो कि ये मिरर है, मान लो कि पहले ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, फिर उसमें से वेव्स निकल रहे हैं. अभी जब वेव्स निकलेंगे तो वो तो सर्कुलर होंगे बाय द सिमेट्री ऑफ स्पेस. By the time you get to the mirror, then you are basically asking the question, what is the interaction of light with this particular piece of material, right? What happens? Like that is what you're trying to do, right? You're trying to zoom into this region and see what is actually occurring. So now once you blow it up, you say, okay, जरा zoom करके देखते हैं इसको. तो mirror ऐसा दिखेगा. और ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं, क्योंकि तुम इतना दूर आ गए हो सोर्स से, तो सर्कल्स बहुत बड़े रेडियस के हो गए हैं और उसका तुम एक छोटा सा पीस पे फोकस कर रहे हो, तो प्रीटी मच वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. राइट. अच्छा, अब बिफोर आई प्रोसीड एक चीज और कर लो, इसको रे ऑप्टिक्स से रिलेट कर लेते हैं. वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव कोहेरेंस टू कनेक्शन विद समथिंग. रे ऑप्टिक्स का जो रे होता है उसका इधर वेव फ्रंट से या वेव से क्या रिलेशन है, इज दैट द रेज आर बेसिकली जस्ट प्रोपगेशन वेक्टर्स, लाइक इट इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. जैसा जो रिलेशनशिप इक्विपोटेंशियल और फील्ड का होता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली, Yes. हाँ सर. राइट? वही रिलेशनशिप रे और वेव का होता है. रे कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, वेव फिजिकल चीज होती है टू द एक्सटेंट दैट इट इज फिजिकल. अब तुमको ये भी पता है कि वेव भी कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, लेकिन out of wave and ray, wave is the more concrete thing, ray is an even more abstract idea. It's simply a mathematical thing. It's a propagation vector going from the source and always being perpendicular to the wavefront. मैं तो अच्छी आ रही तो रशी बाकी सब लोग कहते हैं डॉल्फिन उसकी स्पॉटिंग के लिए. ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया. तो ये रे है. अब अगर मैं ऐसे ही रेज यहाँ बनाऊं, वैसे I don't need to, but I will still just draw them.
तो एक ये रे समझो जो ये आके इधर ठोका है इसको, और एक ये रे ले लो, सारे रेस पैरेलल हो गए होंगे, डू यू एग्री? यस सर। एक्चुअली वो पैरेलल नहीं है, एक्चुअली वो रेडियली आउटवर्ड्स हैं, उनमें सब में एंगल्स हैं, but once you pick a small region, the whole thing is flat, then the rays being perpendicular to it automatically makes them parallel to each other. It's like how actual gravity is radial, right? It's radial and pointing towards the center of the earth. But if you are located in a room which is a tiny part of the surface of the earth, the curvature of the surface is gone, so it's a flat surface. And if the curvature of the surface is gone, so is the curvature in gravity, and therefore it is like this, and you call it g, right? वो वही वाला same concept है जो यहाँ पे लग रहा है। अब मान लो कि लाइट का प्रोपगेशन स्पीड जो है वो है c, ठीक है? तो क्या हो रहा था कि वेव फ्रंट आ रहे थे ऐसे करके, वेव फ्रंट। अब जब वेव फ्रंट आके मिरर से इंटरेक्ट किया तो वेव फ्रंट का सबसे पहले ये वाला पार्ट मिरर से इंटरेक्ट करेगा, अग्रीड? यस सर। जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल क्या कहता है, गोला बनना चालू हो जाएगा, तो हम गोला बनाना चालू कर देंगे, ठीक है? तो गोला बनना चालू हो गया इधर। फिर क्या होगा, जो इसके बाजू में आ रहा है रे वो यहाँ पे हिट करेगा। इट्स लाइक वो नहीं दिखाते हैं, काइंड ऑफ लाइक एरियल बॉम्बिंग, वो टेस्ट कर रहे होते हैं कहीं पे डेजर्ट में, सो दे बॉम्ब लाइक कारपेट बॉम्ब करते हैं पूरा चीज़ को, ऐसे एंगल पे बॉम्ब्स आके गिरते हैं। तो पहले जो बॉम्ब आके गिरता है पहले उसका एक्सप्लोजन होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉम्ब आके गिरता है उसका एक्सप्लोजन होता है। जब उसका एक्सप्लोजन होता है तब तक ये वाला एक्सप्लोजन और बड़ा हो गया होता है, फिर तीसरा आके गिरता है तो ये तब तक और बड़ा और ये तब तक और बड़ा हो गया होता है। तो वाइब्रेशंस जो आते हैं वो ना। हाँ, फिर ये आके गिरेगा तो ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। तुम लोग समझ रहे हो ये जो ड्राइंग में बना रहा हूँ, हाँ सर। राइट? इफेक्टिवली क्या होगा कि ये वाला आके पड़ेगा यहाँ पे, जब ये आके पड़ेगा तो ये तो पॉइंट साइज होगा, लेकिन बाकी सब जो है ऐसे हो गए होंगे, ये इतना बड़ा हो गया होगा, ये इतना बड़ा हो गया होगा, ये इतना हो गया होगा, ये इतना हो गया होगा, इतना हो गया होगा, इतना हो गया। और प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तुमने सारे गोले बना लिए, और इनफाइनाइट गोले हैं एक्चुअली, तो ये जो इनमें बम्पीनेस है खत्म हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और खुद ही जो है एक एनवेलोप बन जाएगा विच इज द न्यू वेव फ्रंट। आर यू एबल टू सी इट? And that will go back, so the interaction with the mirror is complete, and that is the light that is going back. And I hope you can see that the light is coming like this, like a wave, and going like that. तुम लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अब सर। अगर तुम फिर से इसके रेज बना दोगे, नए वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर अगर तुम रेज बना दोगे तो वो ऐसे दिखेंगे। अब the only thing remaining is to actually prove not only does it look right, not only does it look kind of correct as far as reflection is concerned कि ऐसे आके वैसे जा रहा है, it will also, I will also show you that it is exactly going to produce I equals to R, right? उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा इसको, कि मैं फिर से ड्राइंग बना देता हूँ। ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है? ये तुम्हारा वेव फ्रंट आया और इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो मान लो ऐसा हुआ कि इसको जब ये यहाँ पहुंच गया और इसका गोला बनना चालू हो गया, तब तक ये यहाँ था, तो मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी टाइम लगेगा, तो ये लेंथ सी डेल्टा टी हो गई, अग्री? यस सर। जब ये लेंथ, तो ये यहाँ था और इसका गोला बनना चालू हो गया। अब जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका गोला काफी बड़ा हो चुका होगा, ठीक है? उस गोले का रेडियस क्या हो गया होगा? वो भी तो लाइट ही है, वो भी सी स्पीड से बड़ा हो रहा है, तो जब वो टकराया तब यहाँ पे t इक्वल टू 0 मानो और गोला बनना चालू हो गया, सी डेल्टा टी रेडियस। करेक्ट? उसका भी रेडियस सी डेल्टा टी होगा। डू यू ऑल फॉलो? क्योंकि जितना देर इसको यहाँ से आने में लगेगा वो डेल्टा टी टाइम है, तो उतना डेल्टा टी टाइम में ये सी डेल्टा टी से सी डेल्टा टी रेडियस का हो गया होगा। अगला गोला इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा। अब मैं बाकी गोले नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कचरा हो जाएगा, अब मैं डायरेक्टली इस पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना देता हूँ डार्क ग्रीन में, लेकिन वो सब पे टेंजेंट होगा, एनवेलोप होगा, बाकी गोले इसके नीचे आते होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो वापस जाने वाला है, ये वाला इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, देख रहे हो?
अब ये बस दिखाना है कि दोनों का एंगल मिरर से सेम है, विच आई गेस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू कैन प्रीटी मच सी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे टेंजेंट है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड इनकी कॉमन है हाइपोटेन्यूज, एक और साइड कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया प्रूव, I इक्वल्स टू R। समझ गए तुम लोग? सो वो सी डेल्टा टी दोनों सेम लिया, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने वो गोले पे से टेंजेंट बनाया, बाकी जो छोटे गोले होंगे वो इसी के नीचे फिट होते होंगे, राइट, वो मैंने बनाए नहीं है। तो ये समझ गया। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो मैंने शो कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का ये साइड बराबर है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यस, तो देयरफॉर ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल क्या है? ये एंगल वो ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बाय द वे, बिकॉज इफ दिस इज द वेव फ्रंट and this is the mirror and this is angle theta, then the ray is coming like this perpendicular to the wavefront, the ray with the normal also makes an angle of theta। मतलब wavefront का जो mirror से horizontal में angle है वही ray का mirror से vertical में angle है, क्योंकि ray और wavefront आपस में perpendicular है। तो this is the angle of incidence and this is the angle of reflection and you've shown that they are equal, so Sir. at least हाँ Sir, although I understood this, but I have a doubt. So that so the following circles which will be formed, so won't they create a distortion in the immediate previous circle which had been formed? So how can we नहीं, confidently claim? So the point is, like I said, it's not, and neither was it claimed originally that it is the नहीं आ रहा है वो नॉर्मल इंसिडेंस एंगल, ये तुम देख लो ड्राइंग से, इस ड्राइंग से देख लो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि 90 है तो ये थीटा होगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फ्रॉम द नॉर्मल। वो ये नहीं कह रहा है कि वो थेरी नहीं बता रहा है वो कि गोले एक्चुअली बन रहे हैं वहां पर, ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, तो गोलों का आपस का इंटरेक्शन कोई फिजिकल इवेंट नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसको यदि फॉलो किया जाए तो लाइट का बिहेवियर करेक्टली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ओके, फाइन। देख फिजिक्स में क्या होता है इवेंचुअली जो है अल्टीमेटली यही वो ये कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो वाला चीज का ऑब्सेशन अब तो जाके खत्म हो चुका है। अब कोई भी चीज किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता फिजिक्स में, अब सिंपली होता है कि ये करने से वही वैल्यू आती है जो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आती है। तो भले ही जो तुम इधर कर रहे हो वो कितना भी ऑब्सक्योर हो, इट्स लाइक जब पुराने जमाने में पंडित वैदिक टाइम्स में होते होंगे तो वो प्रेडिक्ट करते थे लूनर ये होगा, सोलर ये होगा, so obviously they were doing something correctly, right? Nobody could understand why moving 3 stones to this triangle and moving 1 stick here and then moving 1 line here and then counting how many stones are here and how many stones are here would predict 30 days later the correct solar eclipse, right? There is no one could say कि भाई ये करने से वो चीज कैसे प्रेडिक्ट हो रही है, like what is the basis of this operation, like you move some grains of rice to another place and how did that let you, obviously in a mathematical sense it must be capturing some part of the actual thing, right? लेकिन उसको explain करना हमारा job नहीं होता है, as long as we have a mechanism that produces the correct result then that's good enough, right? So the same thing is the case here. Understood, sir. Right, it's not an explanation for what is actually happening. These are not actual circles of light, that is not what you're saying. It is simply that if you do this, if you follow this principle technique, then what you will get is what actually happens in reality, and that's a powerful thing, right? That's the whole point of doing physics. So अब मैं रिफ्रैक्शन का भी बता देता हूँ क्विकली कि कैसे इससे रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, वो और भी एलिगेंटली आता है। अब मान लो कि एक इंटरफेस है और इसके इधर स्पीड c1 है लाइट का और इसके इधर स्पीड c2 है लाइट का, ठीक है, दो मीडिया हैं, और इधर से तुम्हारा सोर्स था उसने जनरेट किया, तो अब वेवफ्रंट आया और वही लॉजिक है, वेवफ्रंट आते आते जो है ऐसा हो गया है, दिस इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट। नाउ दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अब क्या होगा कि पॉइजन्स का प्रिंसिपल के हिसाब से ये लग गया आगे यहाँ पर, तो जब ये लग गया आगे तो गोला बनना चाहिए, गोला लेकिन अब इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा क्योंकि ये भी एक मीडियम है ना। लेकिन मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स से C2 इज स्मॉलर देन C1, तो क्या होगा कि अगर इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगता है तो ये जो लेंथ है ये C1 डेल्टा टी है, उतना देर में इधर एक C1 डेल्टा टी का गोला बन जाता होगा जैसा इधर बनाए, तो रिफ्लेक्शन तो उसी एंगल पे हो जाता होगा,
लेकिन अब वो बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जब इंटरफेस पे आता है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। तो ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इज ऑलरेडी डन। सो नाउ लुक एट व्हाट्स हैपेंड ऑन द अदर साइड। व्हाट हैपेंस ऑन द अदर साइड इज, ये आके लगा, इसका इधर गोला बनना चालू हुआ। मीनवाइल ये यहाँ पर है, तो जब इसको यहाँ से यहाँ डेल्टा टी टाइम लगेगा तो ये लेंथ c1 डेल्टा टी है। उतने ही टाइम डेल्टा टी में ये जो गोला बन गया होगा, इसका रेडियस क्या हो गया होगा? इसका रेडियस हो गया C1 होगा delta t. c2 डेल्टा टी। इधर c2 है ना स्पीड, और डेल्टा टी ही टाइम है, Yes, sir. Yes. राइट? एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस लेंथ, डू यू एग्री? Yes, sir. तो देयरफॉर जब मैं इस पे टेंजेंट मारूंगा तो अब तुम देख रहे हो वेव फ्रंट जो है, जाता हुआ वेव फ्रंट, आते हुए वेव फ्रंट के रिलेटिव हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, Yes, sir. right? Not only has it bent towards the normal, we can show that it actually reproduces Snell's law correctly. ये दो ट्राइंगल कंसिडर करो, ये वाला और वो वाला। मान लो कि जो हाइपोटेन्यूस है कॉमन वो x लेंथ का है, तो अगर इधर एंगल θ1 है और इधर एंगल θ2 है, तो साइन θ1 की कितनी वैल्यू है? c1 डेल्टा t ओवर x, और साइन θ2 की कितनी वैल्यू है? c2 delta t over x. If you divide these two, you get sin θ1 over sin θ2 equals to c1 by c2. But c1 by c2 जो होता है उसी को mu2 by mu1 कहते हैं। mu का मतलब ही होता है ratio of the speed of light in the medium compared to vacuum, let's say. I mean, you would say c1 is, you would say mu1 is the speed of light in vacuum over the speed of light in the medium. That is the definition of the refractive index. So c1 by c2 is therefore mu2 by mu1. Therefore, mu1 sin θ1 equals to mu2 sin θ2, which is already known to be true. Therefore, this construction is on solid ground in the sense of कि भाई दो नोन फिनोमेना जो लाइट के हैं उनको तो ये करेक्टली प्रोड्यूस करता है विद मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, मेक सेंस? सो and then also you can basically apply the same. Chinmay, what happened in medium 2 was that the wavefront came and this guy hit here, so अब इधर गोला बनेगा, उधर भी बनेगा, मगर वो तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इधर का देखते हैं, गोला बनना चालू, गोला c2 का स्पीड से बड़ा हो रहा होगा क्योंकि इधर का स्पीड c2 है वेव का, और इधर ये अभी बैठा हुआ है, तो इसको यहाँ से आने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगेगा, तो ये लेंथ c1 डेल्टा टी है। उतना ही डेल्टा टी टाइम में ये गोला जो c2 का रेट से ग्रो कर रहा है, ये c2 डेल्टा टी रेडियस का हो गया होगा, विच इज स्मॉलर देन c1 डेल्टा टी बिकॉज c1 इज बिगर देन c2। तो मैंने इधर से एक टेंजेंट बना दिया, तो ये गोइंग आउटगोइंग वेव फ्रंट है, बिकॉज दिस लेंथ इज स्मॉलर देन दैट लेंथ। This dark green line is not parallel to the light green line, it's a little bent like this, and therefore the new wave front can be seen to have bent towards the normal, right? Do you all understand? ठीक है। रिदम क्या पूछ रहा है? Was Snell's law known when Huygens gave this proof? हाँ, it was known, it was already known. Snell's law was known for a long time, for the longest time. So Huygens का प्रूफ जो था वो एक्चुअली आया था in about I think 17 में रहा होगा, आई थिंक मे बी 17 समथिंग में रहा होगा। स्नेल्स लॉ जो है वो आया था, स्नेल्स लॉ तो बहुत पुराना है एक्चुअली। आई मीन स्नेल के नाम पे उसका नाम जो है वो लेटर पड़ा है, 1800s में पड़ा है, लेकिन इन सम और द अदर फॉर्म was known to like even like 14th century and 13th century Persia and all. Arabic text भी हैं, Persian text भी हैं जिनमें उसका mention है and all. So it was, the idea was known. This is actually a very old principle. Yeah, by the way, I don't know if you know this, but there is something called Fermat's principle of least time, which basically produces both the correct law of reflection and refraction. That's another way of looking at it.
और वो इस बेसिस पे होता है कि अगर तुम एक इंटरफेस ले लो और बोलो कि इधर C1 स्पीड से चल सकते हैं, इधर C2 स्पीड से चल सकते हैं, मान लो इधर जो है कंक्रीट है और इधर कीचड़ है, ठीक है, और तुम्हें पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, तो देन व्हाट पाथ डू यू टेक व्हिच गिव्स यू द शॉर्टेस्ट टोटल टाइम? यू माइट से कि followed by light. करेक्ट, एग्जैक्टली, यू माइट थिंक दैट कि अगर मैं कंक्रीट में ज़्यादा चल लूँ और फिर कीचड़ में मिनिमाइज कर लूँ डिस्टेंस तो उससे कम टाइम लगेगा, लेकिन टर्न्स आउट एक्चुअली वैसा नहीं है. And obviously this is stupid to walk less in concrete and more in कीचड़. Turns out the best is somewhere, if I'm saying C1 is faster, then it is the best optimal path is somewhere like this. And in fact it can be shown, मैं ये तो तुम कर ही सकते हो, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, बोल दो कि भाई x पे होगा और फिर डिफरेंशिएट करके टाइम मिनिमाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्नेल्स लॉ प्रोड्यूस कर देगा कि दोनों एंगल का साइन का रेशियो इस दोनों स्पीड्स का इनवर्स रेशियो. ठीक है, रिफ्लेक्शन का लॉ भी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि अगर एक जगह से हम टच करके वापस आएंगे और मुझे A से B जाना है, लेकिन एक बार टच करके आना है इसको, तो मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ, मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ, मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ, मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ. Turns out the path that minimizes my total travel time is the path on which both legs are equal in length, and that's basically the law of reflection. So there are multiple variations on the same principle, and the same principle has been discovered and rediscovered many number of times and has been known to many number of people. I mean the result, not the proof of it, not why it is the case, but simply the fact that it is the case has been known in a lot of different ways, right? खैर, anyway, तो बस ये जानना तुम्हें जरूरी है कि हॉयजेंस प्रिंसिपल क्या है, बिकॉज यू माइट गेट अ क्वेश्चन. जैसे इसके इंटरेस्टिंग वर्जन्स ये होते हैं, देखो ऐसे करो, दिस माइट ऑल्सो बी हेल्पफुल. ये जो मैंने यहाँ पे कंक्रीट और कीचड़ वाला एग्जांपल लिया, एक सेंस में ये अच्छा है, क्योंकि अगर तुम बोलो कि मान लो इधर कंक्रीट है, ठीक है, और इधर जो है मड है, और मड में हम स्लो चलते हैं, तो वेव फ्रंट को इमेजिन करने का एक तरीका ये भी है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक प्लाटून ऑफ सोल्जर्स आ रही है जिनको अपना फॉर्मेशन बनाना होता है, लाइन, ठीक है. तो ये पहले आ रहे थे ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए, अब जैसे ही यहाँ पहुंचे तो मड में पहली बार ये एंटर किया, ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो हो गया. तो किसी भी, जैसे ये एंटर किया तो अब ये थोड़ा स्लो हो गया, तो किसी भी गिवन टाइम में जब ये यहाँ पे पहुंच गया था, मतलब जब यहाँ से इसने इतना ट्रैवल कर लिया तो इसने उतनी देर में कम ट्रैवल किया होगा कीचड़ के अंदर, और फिर सारे लोग उस सेंस में आ गए होंगे, क्योंकि जब वो कीचड़ में घुसते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वेव फ्रंट विल सीम टू bend towards the normal. This is another way of thinking about it. It's just an analogy, right? तो ये हेल्पफुल होता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, इससे तुम ये सब चीजें देख सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई से हाउ अबाउट यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ लेंस. ऐसा लेंस है और इस पे एक बीम आ रही है, इनफाइनाइटली फार अवे ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो वेव फ्रंट आएगा इस पे वो कैसा दिखता होगा? एक ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इनफाइनाइटली फार है तो उसका वेव फ्रंट जब यहाँ लगेगा तो कैसा दिखता होगा? वर्टिकल लाइन ऐसे, इंसिडेंट वेव फ्रंट. तो ये बताओ कि जब ये बाहर निकलेगा तो कैसा दिखेगा? तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D. ऐसा, 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 ऐसा. So is that a lens based? That's a lens. So see, That's a piece of glass. Part तुम कह रहे हो C. Anybody else? और D. चलो D और B में तो क्वालिटेटिवली डिफरेंस है थोड़ा सा. अर्नब, क्वेश्चन ये है that if there is an object that is infinitely far away and this is a lens made of glass and then the light comes and by the time, क्योंकि infinitely far away है तो जो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा वो infinite रेडियस का हो जाएगा, तो बेसिकली ये इंसिडेंट वेव फ्रंट. लेंस से निकलने के बाद वो कैसा दिखता होगा ये बताना है. प्रणव करेक्ट है, वरुण करेक्ट है, पार्थ गलत है, अभिजीत करेक्ट है, हर्षित करेक्ट है, ईशान गलत है, आर्या गलत है. थोड़ा सा सोचने से होगा, तुम लोग सी कर रहे हो लेकिन वो सी गलत है, मिराज गलत है, क्योंकि तुम लोग इसके शेप से देखो ना, खुद ही वही लॉजिक लगाओ जो मैंने अभी बताया. अगर ये लोग परेड करते हुए सोल्जर हैं तो जब ही इसमें एंट्री मारेंगे तो स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ग्लास इज अ डेंसर मीडियम देन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन ग्लास. कीचड़ है, कीचड़ का ऐसा डिच बना हुआ है.
अब जब ये लोग इसमें घुसेंगे तो सबसे ज्यादा कीचड़ में किसको चलना है? इसको, तो ये सबसे पीछे रह गया होगा ना, तो बाय द टाइम दे कम आउट दिस गाइस पीछे एंड दीस पीपल आर आगे, एंड नाउ इफ यू कनेक्ट देम यू गेट द वेव फ्रंट. You all understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. And since the wave front propagates in the sense of उसकी रेज उसके परपेंडिकुलर होती है, तो फर्दर वो ऐसा दिखता होगा, इसीलिए तो वो पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होता है. So the D होगा ना? That's why it's a converging lens. हाँ, B करेक्ट आंसर है. Sir D होना चाहिए ना, spherical aberration भी होगा. नहीं वो सब जाने दो, एक्चुअली डी उतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं था मेरे हिसाब से. मैं शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी. बट एनीवे, डू यू सी व्हाई इट कन्वर्जेस देन? And of course once it converges what happens to it is that it diverges after that. अभी मैं सिमुलेट तो करके नहीं दिखा सकता, बट काइंड ऑफ ऐसे छोटा फूप करके इधर की दूसरी साइड से बड़ा, राइट? बिकॉज लाइट वुड कन्वर्ज एंड देन डाइवर्ज. ऑन द अदर हैंड द लेंस ऑफ दिस काइंड वुड क्रिएट द एग्जैक्ट सेम रिवर्स सिनेरियो. अगर वेव फ्रंट ऐसे आएगा तो अब जो आउटर वाले हैं उन लोगों को ज्यादा कीचड़ में चलना है, तो वो पीछे रह जाएंगे और बीच वाला सबसे आगे निकल जाएगा एंड सो ऑन. तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगी वो ऐसी निकलेगी. That's why it's a diverging wavefront. It goes on to become bigger and bigger and bigger. So first वाला converging lens नहीं है, वो plano वाला. Converging lens है. So diverging नहीं है वो. Converging है ना, बीच में फैट है तो converging होगा. Diverging क्यों होगा? Right. जो भी लेंस बीच में थिक होता है वो converging होता है. इसीलिए तो, for the same reason that I'm explaining right now. Take another example. Let's say you have a concave mirror and there is a distant object from where light is coming. So the wavefront is approaching like this. What does it look like right after reflection? ये एक्चुअली उससे बेटर क्वेश्चन है. ए, ये मैंने बनाया वही कर्वेचर जो मिरर का है, ठीक है. बी, ये भी वही कर्वेचर ऑफ मिरर बट द अदर पॉइंटिंग टू द वे. सी, मोर कर्व्ड देन द मिरर. डी, मोर कर्व्ड देन द मिरर. बता दो तुम लोग आंसर क्या है. नहीं, अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं. श्रेया का करेक्ट आंसर है, अर्नव का करेक्ट आंसर है, बाकी सबका गलत है सो फार. हर्षित का करेक्ट आंसर है, मिताली का करेक्ट आंसर है, बाकी सबका गलत है. रिदम का करेक्ट है, मेराज का करेक्ट है, पार्थ का करेक्ट है. ओके, इट इज सी. व्हाई इज इट सी? You can, if you are in confusion about any of these problems, one way is that whole platoon business. The other way is the Huygens principle, right? Huygens principle इसी का तो mathematical formalism है कि कैसे इसको करना है, right? ये तो बस मैं एक example के तौर पे बोल रहा हूँ कि लोग चल रहे हैं और कीचड़ में फंस रहे हैं. वो तो बस एक सोचने का. The proper and it is mathematical because it has correctly proven the laws of reflection and refraction, right? So it is absolutely perfectly mathematical technique to use the Huygens principle. क्या करो? वेवफ्रंट को लाओ. वेवफ्रंट सबसे पहले इधर इंटरेक्ट करेगा तो इधर गोले बनने चालू हो गए. फिर बाकी भी जो बचा वेवफ्रंट वो अंदर घुसेगा तो फिर ये लोग आगे ठोकेंगे इधर, तो इधर गोले बनने शुरू हो गए. लेकिन ये गोले अब तक बड़े हो चुके हैं. बाकी वेवफ्रंट और अंदर ठोकेगा तो ये बनेंगे, लेकिन ये और बड़े और ये और बड़े हो गए. तुम लोग समझ गए क्या हो रहा है अब? हाँ सर. So what you will end up having is a wavefront going back that is more curved than the mirror itself, and precisely because it is more curved than the mirror itself, it converges at a point which is before the center of curvature of the mirror. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. अगर उसका वही कर्वेचर होता जो मिरर का कर्वेचर है तो ये चीज तो कॉन्सेंट्रिक होता ना फिर मिरर के साथ, तो फिर ये छोटा होते होते तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाता. बट प्लेन मिरर पे जब लाइट पड़ता है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर पे जब लाइट पड़ता है, पैरेलल बीम, तो कहाँ फोकस होता है? वो सी पे थोड़ी होता है, सी से पहले ही हो जाता है. दैट मस्ट मीन दैट द वेवफ्रंट कमिंग ऑफ द मिरर is not simply as curved as the mirror, because that would mean it would go to the center of the mirror. It is actually more curved than the mirror, therefore it focuses at a point before the center of curvature of the mirror. All of you understand? ये focus पे आ जाए. Similarly तुम spherical mirror of the other type के लिए भी बना सकते हो. You can check, इसी का उल्टा situation हो जाएगा. तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स तुम्हें आ सकते हैं. एक IIT में आ चुका है, आई थिंक किसी पेपर में आया था एडवांस में या किसी में.
So, Sir, एक second. sir, I have a doubt in this. हाँ. Sir, if we take the example like of the हाँ, sir, बोलो. soldiers, हाँ. sir जो ऊपर वाले पार्ट पे या सबसे नीचे वाले पार्ट पे जो पहले ठोकेगा, हाँ. सर वो सबसे ज्यादा आगे जाएगा ना, और जब तक पीछे वाला सोल्जर मिडिल वाले पार्ट को टच करेगा फिर वो पीछे जाएगा, तो बी पार्ट होगा ना उसके हिसाब से. तो नहीं, तो वो आगे कैसे पहुंच गया? वही सबसे स्लो डाउन है, तो वही सबसे आगे कैसे चल रहा है? तो ये जाता हुआ वेव फ्रंट है ना. हाउ इज द मिडिल गाय अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स व्हेन ही हैज टू फर्स्ट गो द लॉन्गेस्ट वे एंड देन कम बैक? अच्छा, राइट, अंडरस्टूड. हाँ, है ना? ठीक है. अच्छा, ए और सी के बीच हम कैसे बोलोगे? ए और सी तो वही है ना, मैंने बोला ए इज द सेम कर्वेचर एज द मिरर. हाँ, तो एग्जैक्ट सेम ही होगा. हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लेन अगर कर्व से इंटरेक्ट करेगा तो प्लेन का कुछ अलग पार्ट्स पहले कर्व से इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे और Right. यहाँ पे, राइट. लेकिन हाँ, अगर मान लो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इनफाइनेटली फार नहीं होता, वो इसके सी पर ही होता, मिरर के सी पे ही पॉइंट सोर्स रखा होता, तो उससे जो वेवफ्रंट निकलता वो तो कॉन्सेंट्रिक होता विद द मिरर इटसेल्फ. अग्रीड? Agreed. Yes, sir. जब वो मिरर के पास पहुंचता तो वो सारे मिरर से एक साथ ही इंटरेक्ट करते, सारों के गोले एक साथ ही बनते, तो वापस जाता हुआ वेव फ्रंट भी उसी कर्वेचर का होता जो मिरर का होता है, देयरफॉर सी पे वापस चला जाता. मेक सेंस? अच्छा, तो अब जो है हम आ जाते हैं बेसिकली ऑन टू दी मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो हुआ ये कि जो ये डिबेट था कि वेव है या पार्टिकल है, ये सेटल हुआ बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इनफैक्ट वो एक्सपेरिमेंट जो है इतना आइकॉनिक है, not only did it shake up the foundations of whether light is a wave or particle, it actually shook the whole foundations of physics in general, because that is, you could say is the beginning of quantum mechanics also. So the Young's double slit experiment is actually in one sense all of quantum mechanics is basically captured in that one experiment. जो भी उसकी सारी पैराडॉक्सिकल नेचर है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो भी उसके अजीबोगरीब आउटकम्स हैं, वो सारे उस एक्सपेरिमेंट में कैप्चर होते हैं एक सेंस में. ये सब मैं बाद में बोलता हूँ वंस वी हैव डिस्कस्ड द एक्सपेरिमेंट एनफ, कि उसमें क्वांटमनेस कहाँ से आ जाती है. बट एट दिस पॉइंट हम उसको क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. लाइट इज अ वेव. ये एक्सपेरिमेंट पानी के वेव्स के साथ भी किया जा सकता है, जिसमें कोई डिबेट नहीं है कि वो पार्टिकल है वेव है, वो ट्रूली वेव है. तो अगर तुम पानी का एक टैंक लेते हो और उसमें एक पार्टीशन लगाते हो, ठीक है, पहले मैं एक बेसिक आइडिया बोलता हूँ, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटल उस पर जाते हैं. उसके बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसको मैं बोलूंगा टू सोर्स सुपरपोजिशन. ये हम साउंड में हल्का सा देख चुके हैं, बस उसी का एक ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन होने वाला है. पहली बात तो ये है कि किस तरीके, क्यों ऐसा है कि ये एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो सुपरपोजिशन दिखाता हो, वो ये प्रूव करता होगा कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो वेव है, पार्टिकल नहीं है. वो इसलिए है बिकॉज सुपरपोजिशन इज अ वेव प्रॉपर्टी. सुपरपोजिशन इज नॉट अ पार्टिकल प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट वेव्स का सुपरपोजिशन जो हम साउंड में देख रहे थे, कि मान लो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई. मान लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू लेट्स से I0 है. तो रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट ये है कि रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 2I0 प्लस 2I0 cos of delta phi, which can be written as 4I0 cos square delta phi by 2. बराबर है? Yes. अभी डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जब वो पहुंचेंगे वहां पर, एक वेव इधर से आया, एक वेव इधर से आया, यहाँ पे इनका सुपरपोजिशन हो रहा है. जब वो वहां पहुंचेंगे तो वहां पे जो आउटकम प्रोड्यूस होगा वो इससे कंट्रोल होता है कि उनके बीच में वहां पे फेज डिफरेंस कितना है. ये वैल्यू अगर 1 हो गई तो वहां पे 4I0 प्रोड्यूस होगा.
यानी दो चीजें आई जो खुद आई नॉट थी, लेकिन उनका आउटकम उनका 4I0 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे पहुंच के उनके बीच में फेज डिफरेंस ऐसा हो कि cos स्क्वायर 5/2 जो है वो 0 हो जाए। यानी दो चीजें आई जो I0 है और वहां पे उनका आउटकम 0 है। दिस इज नॉट अ फिनोमिनन दैट पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट। Two tennis balls arriving at a place do not lead to 4 or 0 tennis balls. Two people arriving at a place does not lead to 4 or 0 people. क्लासिकल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी इंटरैक्शन में सुपरपोजिशन नहीं होता है ना। अज्यूमिंग, ठीक है, मान लो कि बहुत वायलेंट कोलिजन हो गया, एक बॉल के 50 टुकड़े हो गए, लेकिन वो उसी बॉल के 50 टुकड़े हैं, राइट। 4 कॉपीज ऑफ द बॉल नहीं बन गए वहां पर। लेकिन वेव्स का सुपरपोजिशन कैन प्रोड्यूस, I mean, in this, as you can see here, anything ranging from 0 to 4 times, which is not a property of particles. Particles do not have this property. ठीक है, तो मैं इसको और ठीक से illustrate करूंगा once I explain to you the setup of the YDSC. But कौन सा हर्षित? ये मैंने बताया था साउंड के एंड में लास्ट टाइम, जो हम ये पढ़ते थे, सुपरपोजिशन। ये हम पढ़ चुके। एंड सिंस I is proportional to amplitude square, तो मैंने I के टर्म्स में लिख दिया उसको, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, ये भी YDSC नहीं है, YDSC इसी का एक प्रैक्टिकल वर्जन है, बट अभी हम केवल मैथमेटिकल बात कर रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक सोर्स है S1 और सोर्स है S2. They are separated by some distance d. They could be light sources, they could be sound sources, they could be they could be places where you touch the pond, so ripples, right? Any waves will do the job. मान लो ripples on a pond ही ले लो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा डिटेक्टर बैठा है D, maybe it's a duck. तो पहला क्वेश्चन जो ये है, which is the central mathematical question of this chapter, is that कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डक की लोकेशन पे क्या हो रहा है, can we find what the duck experiences, right? Yes. तो वो हम कर सकते हैं। उसका लॉजिक ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर इसको R1 बोला जाए, the distance of duck from the distance of detector from the first source, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको यदि R2 बोला जाए, distance of the detector from the second source, then whether the duck does excessively violent oscillations or whether the duck sits completely at chill ultimately depends on the difference of these two values. यानी कि जिस चीज को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जो कि यहाँ पे है R2 माइनस R1, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि डक की लोकेशन पे क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, जो वेव्स निकल रहे हैं इनमें से जिनका वेवलेंथ लैम्डा है, अगर इन दोनों पाथ्स का लेंथ का डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल है, तो देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन एक ही बात होती है एट डी। ये बात तुम लोग समझ रहे हो? Yes. क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाला लेंथ इस लेंथ से 4 वेवलेंथ लंबा है, विच इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, दोनों वेव साथ में चालू हुए, तो ऐसे जा रहे हैं क्रेस्ट टफ करते हुए, राइट। अब मान लो जब ये यहां पहुंच गया, तो ये मान लो ये टोटल लेंथ 10 है और ये टोटल लेंथ 6 है, ठीक है, और इनका वेवलेंथ 1 है, तो ये 4 वेवलेंथ लंबा है उससे, और दोनों का स्पीड सेम ही है, वेव्स का एक ही मीडियम है। तो मान लो यहाँ से इसका, जब ये दोनों साथ में पत्थर गिरे थे, तो जब ये 6 डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा, तो मान लो अभी इसका क्रेस्ट आ रखा है यहाँ पर, बराबर।
तो यहां से लेकर 6 डिस्टेंस पर इसका भी क्रेस्ट आ रखा होगा, लेकिन वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जो 4 है, क्योंकि वेवलेंथ तुम 1 ले रखे हो तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। लेकिन अगर यहाँ क्रेस्ट आ रखा है तो इससे 4 वेवलेंथ, एग्जैक्टली 4 वेवलेंथ आगे भी क्रेस्ट आ रखा होगा। कितने भी वेवलेंथ आगे क्रेस्ट आ रखा होगा, क्योंकि एक वेवलेंथ के बाद बिल्कुल वही चीज हो रही होती है जो वहां हो रही होती है। So therefore, if this path is longer than this path by any integer multiple of wavelength, then whatever this wave produces at this place at a time, crest, trough, something in between, this wave also produces the same thing there at that same time. यानी इसका जब क्रेस्ट होता है वहां पर तो उसका भी क्रेस्ट होता है और वो डबल क्रेस्ट हो जाता है, तो डक डबल ऊपर चली जाती है। और जब ऑब्वियसली ये स्टैटिक सिचुएशन नहीं डायनामिक सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं कि इसका वहां पे हमेशा क्रेस्ट रहता है, ये वेव भी चलता रहता है, तो इसका क्रेस्ट आगे चला जाता है, फिर वहां पे जब ट्रफ आ जाता है इसका, तो इसका भी उसी टाइम ट्रफ आ जाता है, डक जो है डबल डीप चला जाता है नीचे। So the duck ends up doing an oscillation of double the amplitude or very violent oscillations, which is called a constructive interference. Constructive interference का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर हमेशा ऊपर बैठा रहेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि ऊपर भी ज्यादा जाएगा, नीचे भी ज्यादा जाएगा, ऑसिलेशन ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड का होगा, इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट इफ the path difference is some odd multiple of half wavelength, then there is destructive interference at D. ये भी तुम लोग समझ सकते हो। अगर मान लो ये वेव है और यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है वॉट एवर हाइट, तो इससे एग्जैक्टली एक वेवलेंथ आगे भी वही हो रहा होता है, 2 वेवलेंथ आगे भी वही हो रहा होता है, n वेवलेंथ आगे भी वही हो रहा होता है, लेकिन इससे एग्जैक्टली आधा वेवलेंथ आगे इसी चीज का उल्टा हो रहा होता है। समझ गए? या 1.5 वेवलेंथ आगे इसी चीज का उल्टा हो रहा होता है। बेसिकली फेजर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो आधा वेवलेंथ आगे मतलब फेजर में पाई, तो जो भी ये चीज कर रहा है ये उसका उल्टा और अपोजिट कर रहा है। तो देयरफॉर अगर मान लो कि इस वेव के कारण यहाँ पे अभी क्रेस्ट आया हुआ है 6 का डिस्टेंस पे, मान लो ये 6 का डिस्टेंस है और ये 10 का डिस्टेंस है, लेकिन वेवलेंथ जो है आपकी बार वो एक्चुअली 2.5 है। ठीक है, करेक्ट? तो Yes, sir. नाउ जो डिफरेंस है 10 और 6 का यानी 4, वो 2.5 का इंटीजर मल्टीपल नहीं है, वो 2.5 का कुछ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। आई थिंक सो, नहीं, आई मीन टेक एनी वैल्यू व्हाटएवर, मान लो 1 ही वेवलेंथ ले लो और ये टोटल डिस्टेंस जो है 10 है और ये 7 है, ठीक है, या 7.5 है व्हाटएवर। तो क्या होगा कि क्रेस्ट तो हो गया, लेकिन बाकी बचा जो डिस्टेंस है, मतलब इसने वहाँ पे क्रेस्ट कर दिया, इसने यहाँ पे क्रेस्ट कर दिया 7 पे और 7 पे, लेकिन बाकी बचा और जो डिस्टेंस है वो अब वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। तो जब तुम वहां से क्रेस्ट से एक वेव, मान लो 2.5 वेवलेंथ और बचा हुआ है, तो एक वेवलेंथ आगे जाओगे तो क्रेस्ट आएगा, 2 वेवलेंथ आगे जाओगे क्रेस्ट आएगा, और आधा वेवलेंथ आगे जाओगे तो ट्रफ आ जाएगा। यानी कि एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम वन वेव इज आस्किंग द डक टू गो अप, द अदर इज आस्किंग द डक टू गो डाउन, सो द डक गोज नोवेयर। दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली दोनों वेव्स वहां से कॉन्टिन्यूअसली पास होते रहेंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का उल्टा उल्टा चीज कर रहे होंगे, सो द डक विल बेसिकली नॉट मूव एट ऑल, व्हिच इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? तो ये कंडीशन जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये हर चैप्टर के लिए ट्रू है, वेव्स के सारे लॉजिक में ये ट्रू है कि अगर पाथ डिफरेंस, दो वेव्स अगर दो अलग अलग पाथ ट्रेवल करके कहीं पहुंच रहे हैं और अगर वो पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। अगेन वी विल सी there is another condition to be met, which is provided that the two waves started in the same way. हो सकता है कि यहाँ पे भी तुमने कुछ लोचा कर दिया हो, ये पत्थर गिरा फिर आधा टाइम पीरियड बाद ये पत्थर गिरा, तो ऑलरेडी इनके बीच में फेज डिफरेंस ऑफ पाई हो गया एट सोर्स इटसेल्फ, तब कंडीशन रिवर्स करनी पड़ेगी, राइट? बट वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। माय पॉइंट इज that if the sources are identical and start at the same time in the same way, then ultimately it depends on path difference. If the path difference is an integer multiple of the wavelength, then you get a constructive interference at D, which means an oscillation of a large amplitude. Constructive interference का मतलब ये नहीं होता कि बस ऊपर बैठा रहेगा, वो ऊपर भी डबल जाएगा नीचे भी डबल जाएगा, ये होता है constructive interference और ये होता है destructive interference। ठीक है? ऑब्वियसली अगर तुम लाइट की बात कर रहे हो, दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट,
Then the constructive interference, which looks like this, means more brightness. Or again, like I said, I might have said this also, brightness fluctuate करता हुआ नहीं दिखेगा तुमको. As a human being, you can't detect that variation. तो brightness ही characterized है इसके extent से. जितना ये बड़ा wave है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उतना ज़्यादा bright यहाँ पे दिखेगा और constantly bright दिखेगा. That's a constructive interference. You should not think कि अगर ये light का wave है, तो यहाँ पे bright होता है, यहाँ पे dark होता है. ऐसा नहीं होता है. ये ऊपर bright, नीचे dark नहीं होता है. Brightness or darkness, bright and dark is not in light. It is not the case that this is bright and this is dark. Or if it's sound, it is not the case that this is loud and this is quiet. No, that is incorrect. क्योंकि स्पेस में अप और डाउन का कोई मतलब थोड़ी है. वेव जा रही है ऐसे करके, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ऐसे अप और डाउन तो हमारे लिए है क्योंकि हमने ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लिया, तो हमने इसको स्पेशल प्लस और इसको माइनस. बट इन एब्सोल्यूट स्पेस वेव्स आर गोइंग, देयर ऑसिलेशंस लाइक दिस एंड दिस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ब्राइट और डार्क का जो डिफरेंस है वो ये है कि दिस होल थिंग इज ब्राइट and this is a dark thing, or this whole thing is loud if you're taking the example of sound, and this is a quiet wave. एम्पलीट्यूड जो है वो पूरा चीज़ होती है. ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो एम्पलीट्यूड बड़ा होता है तो वो ब्राइट या लाउड होता है, और एम्पलीट्यूड छोटा होता है तो वो डार्क या क्वाइट होता है. वेव पे ही कोई पॉइंट ब्राइट और डार्क नहीं होता है. ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इज एन एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ इट. ठीक है. No, Harshit, we don't observe, we are not capable of observing any fluctuations in the intensity of light. That is not possible for us. And in any case, this is not a wave fluctuation in the intensity of light. This is light itself. Intensity has no meaning at the real time scale. Intensity is an average of the amplitude. So as long as the amplitude maintains, you would only, if you wanted to see fluctuations in the intensity of light, it would have to happen like this. This would be bright, 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 and then would get dark, and then would be bright, bright, bright. Not the thing itself. You understand? Right? So, यही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इस चैप्टर का मेन कंटेंट होने वाला है. बेसिकली दिस होल चैप्टर इज अबाउट टू सोर्स सुपरपोजिशन, एंड वी बी सीइंग वेरियस वेज ऑफ डूइंग टू सोर्स सुपरपोजिशन. बट मोस्टली हम लोग पूरा एकदम फिजिकली नहीं करेंगे, यानी कि पूरा मैं R2 निकाल के और पूरा R1 निकाल के नहीं करूंगा. मोस्टली विल बी डूइंग इट इन द अप्रोक्सीमेशंस, बिकॉज एज यू विल सी द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट is done with a certain set of dimensions of how far apart these are and how far apart the detector is, and those let us simplify this. Otherwise I have to do the whole Pythagoras. This I have to find by this square plus this square, then this I have to find by this square plus this square, and then I have to take a difference of them, and that's a really bad looking expression. So but we usually don't have to actually deal with the proper R2 minus R1, because usually these two are really close together and the detector is really far, right? So we apply some approximations and that simplifies the expression considerably. That is what we will be doing, right? तो लास्ट चीज ये है, फिर आज के लिए खत्म करते हैं more or less, कि मान लो मेरे को निकालना हो कि लेट्स से, मैं बता ही देता हूँ यही चीज कि अब वैसे निकालना तो इसको थोड़ा पेनफुल है. ठीक है. अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ. देखो, if you agree that whether there is a constructive interference here or a destructive interference here depends on the path difference, then tell me this. Let's say there are two sources of light. ठीक है. और तुम्हारे पास क्या है, स्पेस में एक पाथ डिफरेंस मीटर है. ठीक है. S1 ये है, S2 ये है, और तुम्हारे पास यहाँ पे एक छोटा डिवाइस है विच इज द PD मीटर, हाइपोथेटिकल पाथ डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस. और जब तुम कहीं पर भी होते हो स्पेस में, सो यू आर फ्री टू मूव अराउंड इन ऑल ऑफ स्पेस टेकिंग द PD मीटर विद यू. एंड व्हाट द PD मीटर डज इज इट मेजर्स द डिस्टेंस टू सोर्स 1, measures the distance to source 2, and then displays the difference here. So maybe it is right now showing whatever 31.0 meters or whatever. ठीक है.
अब जैसे जैसे तुम इसको लेके स्पेस में जगह जगह घूमोगे तो ये पीडी मीटर अप्रोप्रिएटली रीडिंग दिखाएगा. क्या दिखा रहा है ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस. करेक्ट. So first of all, tell me that if you were free to move through all of space with the PD meter, what is the least reading you could observe on the PD meter and where? 1 meter. 0 Zero. 0. कहाँ होगा जीरो? midpoint 3D है ये, तो थोड़ा और जनरली बोलो. line joining और जनरली line- बोलो. Positioned in the middle of the two sources, हाँ, but generalize it. This is a 3D situation, equidistant from the two sources. which is what kind of a surface? A plane which is A plane. perpendicular. Correct. Bisector plane जो है इनका जो bisector plane है, the whole plane which is the bisector plane, if you are at any point on the bisector plane with the PD meter, then you are equidistant from the two sources and therefore the reading on the PD meter is 0. So as long as you move in the bisector plane, the reading remains at 0. Correct? Where would you have to be located so as to get the maximum possible reading on the PD meter? Line joining S1 S2. Where? Along the line S1 S2. And located where on that line? So anywhere On the either difference would end. be- So anywhere on the line, the difference would be 6. Even here? No, not between them. Correct. Anywhere on the line, but outside of this region, you would get the largest. मैं sources को थोड़ा सा highlight कर देता हूँ, so that we can see them clearly. If you are on this line, outside of this S2, या तो S2 के नीचे S1 के ऊपर, that is where you are going to get the largest possible reading on the PD meter, and it will be equal to whatever is the distance between the two. अगर तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारा इससे distance ये है, उससे distance वो है, तो उनका difference ये है, और इससे ज़्यादा reading इस पे कभी नहीं आ सकती, तुम कहीं भी चले जाओ space में. ये बात तुम लोग समझ गए हो? और कहीं भी जाओगे, तो इससे कम ही reading आएगा. So basically, if you start on the bisector plane and as you move to this side, the reading basically increases and maximizes here. Then you can go and it decreases to 0, then increases and maximizes here and decreases to 0. Correct? Now tell me this, if you have some reading here, let's say 31 or whatever, and I ask you to move in such a way that the reading does not change. Whatever it is showing right now, मान लो 31, maybe you are here. Move in space in such a way that this number does not change. Then what kind of a shape or surface are you moving on? Ellipse. Nahi. Think again. hyperbola Hyperbola. Chinmay, circular is a subset of it because you can be moving on a circle while being on the hyperbola, but the general case is the hyperbola because that's the definition of the hyperbola. It's the locus of a point that moves in such a way so that its difference of distances from two fixed points remains the same. That's what this is. Our difference is that. Is the difference of distances from two fixed points. And I'm asking you to move in such a way that it remains the same. So by definition, you are moving on a hyperbola. Of course, it's not a hyperbola, it's a hyperboloid because you're moving in 3D. So it's more like this. Right, you all understand? I mean, Yes, this sir. is not the one you are moving on. You would be moving on a one which is more open. And so, since, like I said, since it is the case that you are moving on a hyperboloid, and also since the part difference increases there and decreases there, so basically what you are seeing is that now let's say somebody says, okay, 31 वाला hyperboloid पे तुम चल लियो, अब 32 वाला hyperboloid पे या 30 वाला hyperboloid पे चलो, तो तुम थोड़ा इधर आ जाओगे क्योंकि PD मीटर इधर कम रीडिंग दिखाता है, फिर उस पे चलोगे, तो you find that basically the all of space is really just a bunch of nested hyperboloids, one inside the other, so that the bigger hyperboloids or the more open hyperboloids are hyperboloids of smaller part difference. Ultimately, the bisector plane itself is a degenerate hyperboloid in the sense of that it is a hyperboloid where the part difference is 0. It satisfies the definition definitely. The bisector plane is the locus of a point that moves in such a way that its difference of distances from the two fixed points remains a constant, particularly 0, right? So वो definition को तो satisfy करता ही है.
और बाय द वे उस डेफिनेशन को ये लाइन भी सेटिस्फाई करती है. सो इन दैट सेंस ये लाइन भी एक दूसरी तरफ का डिजेनरेट हाइपरबोलॉइड है, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू मूव ऑन दिस लाइन, your difference of distances from these 2 points remains a constant. So essentially, starting from this line and opening up to the bisector plane, you have a bunch of nested hyperboloids, with this one being the hyperboloid of the maximum part difference and this one being the hyperboloid of the least part difference. You all understand this much? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वन इनसाइड, ऐसा वो रशियन डॉल्स होता है, वो एक के अंदर निकलते हैं, उस टाइप का सिस्टम है ये. नाउ अब बस इसमें एक चीज और करना है, फिर हम खत्म करते हैं. If let's say the wavelength, these are two light sources, and the wavelength that they are emitting is मान लो 2 meters, and of course you have seen कि constructive interference की condition जो है वो ये है कि part difference उधर n lambda होना चाहिए, और destructive interference जो कि light के केस में bright होगा constructive, और destructive मतलब dark होगा, की condition है कि part difference जो है odd multiple of half wavelength होना चाहिए. तो तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर तुम बाइसेक्टर प्लेन पर हो तो उधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रखी है डिस्ट्रक्टिव, यानी वो ब्राइट है कि डार्क है? डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. पार्ट डिफरेंस कितना है बाइसेक्टर प्लेन पे? Equal for both, so constructive. What is part difference on the bisector plane? 0. 0, right? पार्ट डिफरेंस 0 है ना बाइसेक्टर प्लेन पे, और 0 जो है वो लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है, वो हाफ लैम्डा का ऑड मल्टीपल तो नहीं है. नेचुरली अगर तुम दोनों सोर्सेज से इक्वल डिस्टेंट हो तो दोनों वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से तुम्हारे पास पहुंचेंगे. एक का क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरे का भी क्रेस्ट आ रहा होगा, एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे का भी ट्रफ आ रहा होगा. तो देयरफॉर द बाइसेक्टर प्लेन इज ब्राइट. फ्रॉम द बाइसेक्टर प्लेन मूव टू द हाइपरबोला दैट हैज द पीडी ऑफ 1. मैं इंटीजर वाले ही ले रहा हूँ, ऑल्दो कंटिन्यूअस है. 1 पीडी वाला हाइपरबोलॉइड पकड़ो. Is 1 going to is a part difference of 1 an integer multiple of 2, or is it an odd integer multiple of 2 by 2? This, right? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग समझ रहे हो ना, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ये चीज. Is it okay? नहीं. ठीक है. तो 1 वाला जो हाइपरबोलॉइड होगा, जो बाइसेक्टर से थोड़ा सा ही कर्व्ड हाइपरबोलॉइड है, जो बाइसेक्टर प्लेन से हल्का सा कर्वेचर है ऊपर और नीचे, वो डार्क होगा. देन उससे जो थोड़ा और कर्व्ड है, थोड़ा और ऐसे करके है, 2 वाला पार्ट डिफरेंस जहाँ पे Constructive. उधर पार्ट डिफरेंस 2 है और वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो वो फिर से ब्राइट हाइपरबोला होगा, हाइपरबोलॉइड होगा. फिर डार्क हाइपरबोलॉइड होगा 3 वाला. फिर तो एसेंशियली नॉट ओनली आर दीज अ सेट ऑफ नेस्टेड हाइपरबोलॉइड्स, दे आर आल्सो अल्टरनेटिंग इन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस. इट्स ब्राइट हियर एंड देन डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. और मैंने तो तुम्हें केवल इंटीजर वैल्यूज बताए कि 1 पार्ट डिफरेंस, 2 पार्ट डिफरेंस, 3 पार्ट डिफरेंस, बट ऑफ कोर्स देयर इज समबडी विद 1.27395 पार्ट डिफरेंस आल्सो. सो इट्स नॉट सिंपली लाइक a zebra crossing. It's not like bright dark bright dark. It's like a continuous variation. The bisector plane is bright, and then there is an infinity of hyperboloids, one inside the other, smooth for all real values. And then it transitions from being bright to a dark hyperboloid, and then transitions from there to bright hyperboloid, and then dark hyperboloid, and then bright hyperboloid, and then dark. तुम लोग समझ गए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है लाइट का स्पेस में? Yes, sir. ठीक है, क्लियर सो फार? ऑलराइट, तो यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसके आगे कि अब अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मुझे कहीं स्क्रीन लगाना पड़ेगा. आई मीन लाइट को हवा में तो नहीं देख सकते ना कि लाइट ऐसे जा रही है और मैं उसको साइड से देख रहा हूँ. दैट इज नो वे ऑफ लुकिंग एट लाइट, राइट? यू हैव टू ईदर सी इट ऑन अ स्क्रीन और इट मस्ट गो इनटू योर आई डायरेक्टली, राइट? सो देन वील डिस्कस हाउ डू वी ऑब्जर्व दिस पैटर्न by putting a screen like this or by putting a screen like this. And once you put a screen like this, you get some kind of a section of this structure onto that screen, a kind of a pattern which we observe and then do some mathematics on. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके आगे से. ऑलराइट, अभी साउंड तो हमारा खत्म हो चुका है. आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बोल ही दिया था तुम लोगों को. साउंड का तुम पूरा तुम्हारा जो बुकलेट है वेव्स का वो तुम पूरा कर सकते हो, और साउंड का चैप्टर जो है HCV में से वो भी पूरा कर सकते हो. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं, ठीक है. ऑलराइट देन, Thank you, sir. थैंक यू ऑल, बाय बाय. Peace out.